Hi students, morning. And let us start today with a new topic of magnetic effect of electric current, because that's what actually some of the students requested. That sir, this topic was or this topic is going to come in their exam, and sir क्या आप ये करवा सकते हो, because हमारे schools में हो चुके हैं. So I thought let's take this particular topic, and then post than this we are going to take two other topics of bio. Okay. Now, magnetic effect of electric currents. So what exactly does somebody mean when you are talking about the word magnetic effect? But उसके पहले magnet का मतलब क्या होता है? So magnet, and that's what I have written up the first term, because today we are going to cover all these topics. We are going to cover what do you mean by magnet, what is magnet, what do you mean by magnetic materials, what do you mean by the word directional property and the poles of the magnet, what are properties of magnet, what is magnetic compass, what do you mean by the word magnetic field, meaning of strength of magnetic field, units and symbols of magnetic field, sources of magnetic field lines, and then we would be ending up the topic, not the topic but today's lecture, onto the word properties of magnetic field lines. So without wasting time guys, let us start now with the topic. So the topic reads first magnet. So what do you mean by magnet? Those particular substances which have got the ability to attract certain materials near to themselves or to themselves are known as magnet. Those material which have got the property to attract certain other material towards themselves will be known as magnet. What are those materials जिनको ये attract करते हैं magnet? For example, ये किस किस को attract करेंगे? And that is कौन कौन सा? That is iron, nickel and cobalt. So iron, nickel and cobalt को आमतौर पे magnet अपने तरफ में attract करते हैं. So those particular substances which are going to attract iron, nickel and cobalt towards themselves will be known as magnet. But then what do you mean by the word magnetic materials? Those particular substances which actually carries this property to attract such kind of material towards themselves will be known as magnetic materials. Magnet क्या होगा? वो particular substance जो किसी material को अपने तरफ में attract करता है. मैग्नेटिक मटेरियल, अभी मैग्नेटिक मटेरियल क्योंकि कभी कभी हम मैग्नेट आयरन से भी बना लेते हैं अपने अंदर, सो ऑल ऑफ दो सब्सटेंसेस विल बी नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक मटेरियल्स. अब आते हैं द वर्ड पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी? इफ आई एम गोइंग टू टेक अ बार मैग्नेट कैसा होता है? लेट अस सपोज देयर इज दिस बार मैग्नेट, यहां पर लिखा होता है N, यहां पर लिखा होगा S. This will be known as North Pole, and this is known as South Pole. So North Pole will always be deflecting towards where? Towards north, while South Pole will always be deflecting where? Towards south. सो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है. मैग्नेट इतना यूनिक सब्सटेंस होता है जिसको यदि आपने कभी एक थ्रेड से यदि आपने सस्पेंड कर दिया, सो इफ यू आर गोइंग टू सस्पेंड अ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, देन इट इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इसका मतलब आप उसको किसी भी डायरेक्शन में ऐसे घुमा दोगे. सपोज कर लो ये एक बार मैग्नेट है और मैंने इसको एक धागे से ऐसे बाउंड करके एंड आई हैव नाउ सस्पेंडेड इट, एंड इफ आई एम गोइंग टू सस्पेंड इट एंड इफ आई एम गोइंग टू लीव इट लाइक दिस एंड से सपोज नॉर्थ इन दिस डायरेक्शन एंड ये है इसका नॉर्थ, देन ये ऑटोमेटिकली इस तरफ में आ जाएगा, ऐसे करता रहेगा. सो दिस शोज व्हाट? दैट दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड दिस डायरेक्शन इज साउथ. द डिवाइस which is used to measure the directional property will be known as what? Will be known as compass. So compass is that device through which you can actually measure that which direction is which one. Okay. So when I am talking about the word, the compass,
कंपास में कुछ नहीं होता, एक छोटा सा ऐसे समथिंग लाइक दिस, देयर इज दिस पॉइंटर, यहां पर एक छोटा सा होल होता है और इसके ऊपर में ऐसे एक स्टिक होती है और ये पूरा का पूरा पार्ट इस पर ऐसे लगा हुआ होता है. सो दिस विल बी पाइवटेड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर रॉड और ऊपर की तरफ में एक ग्लास पीस होता है. अब जब भी कभी आपको कंपास से आपको एक डायरेक्शन देखना होता है कि ये डायरेक्शन कौन सा है, सो द कंपास का ये जो पोल होता है यहाँ पर एक छोटा सा एक रेड कलर का मार्क होगा. सो जिस भी जगह पर रेड कलर का मार्क होता है दैट विल बी शोइंग व्हाट, नॉर्थ, and common sense this particular direction will be showing what, that is south. Now always remember guys, these are the directions, this is north, this is south. नॉर्थ के हमेशा लेफ्ट में ऑलवेज वेस्ट आता है और नॉर्थ के हमेशा राइट हैंड डायरेक्शन में हमेशा ईस्ट आता है. करेक्ट? सो इट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सो थिंक अबाउट इट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई और से गुजरात or even say for that say Goa, where do you think these states or these places, where do these particular places, cities, states actually do lie if you are taking the Indian map? Are they on the northern side, are they on the eastern side, are they on the western side or at the southern side? So you need to tell me in the comments that where do you think Mumbai, Gujarat or kind of Goa actually lies on Indian map. And that's all. Okay, so understand that this is north, this is west, this is east and this is south. So यदि नॉर्थ ने ये वाला डायरेक्शन शो कर दिया, ये नॉर्थ, तो कॉमन सेंस है इसके ऑपोजिट क्या होगा, साउथ. अब यदि नॉर्थ यहाँ पर है तो ईस्ट किस जगह पर होगा, टुवर्ड्स इट्स राइट. तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में वो लोग लिख देते हैं ईस्ट एंड इस डायरेक्शन में लिख देंगे क्या, वेस्ट. और ये चीज ऐसे एक सर्कल वाले पार्ट के अंदर ये कंपास होता है और नीचे से एक पाइवट पॉइंट होता है ताकि ये ऐसे से घूम सके. एंड दिस डिवाइस विल बी नोन एज कंपास. सो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास used to show, magnetic compass is always used to show the directions north and south. How does the magnetic compass works? Magnetic compass is based on the principle of magnetism, and since magnet has always got a directional property, so any compass or the pointer will always align itself. Align मतलब उस लाइन में होना. Align itself, align की spelling ये होती है, will always align itself in the north and south direction. So that is this part. Let's move ahead. So this is directional property. Now let's come on to the topic of poles of magnet. Now always remember that any kind of magnet, be it a horseshoe magnet किस shape का होगा? So any kind of, and this will be known as a bar magnet. So this is known as a horseshoe magnet. While this will be known as bar magnet. So there are two poles, that is north and south, and यदि यहाँ पर भी आप देखोगे, so there are going to be two poles, that is north and south. Okay. Now, if let us say suppose example that there is this particular bar magnet, then what do you mean by poles? Poles will be this part. So these are known as the poles of the magnet. And every magnet needs to have necessarily two poles. What will be the name of the poles? North pole and south pole. There can never ever be a east pole and a west pole in a magnet. It always has to be north pole and south pole in a magnet. Okay. So this is that. So these are known as the poles of the magnet. Now let us say suppose there is this bar magnet and accidentally मैंने इसको नीचे गिरा दिया, ये गिर गया नीचे. अब क्या लगता है क्या होगा? If यदि ये particular magnet नीचे की तरफ में गिर जाएगा, that means this is going to be broken. जब ये ब्रेक हो जाएगा तो very important point, magnetic monopoles do not exist. Magnetic monopoles do not exist.
What do you mean by magnetic monopoles do not exist? That simply means that यदि आपने इसको दो टुकड़ों में डिवाइड भी कर दिया तो यहां पर नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ बन जाएगा। इसका मतलब आप सिंगल नॉर्थ पोल को कभी नहीं ढूंढ सकते ऐसे मैग्नेट के अंदर, ऐसे ही आप दूसरे मैग्नेट के अंदर कभी भी सिंगल साउथ पोल नहीं ढूंढ सकते। दे विल ऑलवेज बी इन कॉम्बिनेशन, नॉर्थ होगा तो साउथ होगा, साउथ होगा तो नॉर्थ होगा, लाइक दैट। Okay, now let's talk about the word properties of magnet. What are the properties of magnet? Magnet will always attract the substances towards itself. Magnet हमेशा आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक substances. So ferromagnetic substances are those which are always going to get attracted towards the magnet. Okay. Now ferromagnetic substances में कौन कौन से हो जाएंगे? It can be iron, nickel and cobalt. So these are the so-called ferromagnetic substances. So what are the properties of magnet or the magnetic material? They'll always get attracted towards the magnet. Always attracted. क्या इनमें कभी repulsion होगा? नहीं. Second point, the north pole and the south pole always क्या करेगा एक दूसरे को? They will repel each other. दूसरे को धक्का देंगे. On the other hand, the north pole, south pole and the south pole, north pole will always do what? Attract each other. And from over here आपकी famous English की कहावत बनी है opposites attract. यदि north pole और south pole को एक साथ रखोगे, suppose कर लो there is this bar magnet and there is this north and south and there is another bar magnet and there is this south and north. तो ये क्या करेगा? ये इसको यहाँ धक्का मारेगा और ये इसको यहाँ धक्का मारेगा. So ultimately they all are going to move a bit away from each other. ये दूर दूर जाएंगे because यहाँ पर होगा repulsion. On the other hand, let us say suppose there is this north pole and south pole and there is this north pole and south pole, then this is going to go right over here and ये वाला part भी क्या करेगा? So in this case, this particular part is going to do what? Attract each other. फिर यहां पर क्या हो रहा होगा? ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये repulsion. Correct? Now, so remember that like poles always attract each other. Like poles will always repel each other and unlike poles will always attract each other. So if somebody asks you, okay, what about north and south? Attract each other. What about south and north? Attract each other. What about north and north? Repel each other. What about south and south? Repel each other. It's that simple. Got it? Okay. Let's move ahead. Properties of magnet के अंदर एक और प्रॉपर्टी क्या होती है? Magnetic monopoles do not exist. मैग्नेट के मोनोपोल्स कभी भी सिंगल अट्रैक्ट मतलब सिंगल नहीं होते, वो हमेशा पेयर के अंदर होते हैं, नॉर्थ विद साउथ एंड साउथ विद नॉर्थ. लेट्स मूव अहेड. मैग्नेटिक कंपास, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी डायरेक्शंस एंड इट इज बेस्ड ऑन द what? It is based on the principle of directional, right? So magnetic compass is always based on the principle of directional ability of magnet. Magnet हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की तरफ में अलाइन होगा. तो मान लो पुराने ज़माने के अंदर जब सी सेलर्स को या किसी को भी वॉयज पे जाना होता था, वॉयज मतलब जर्नी पे जाना होता था, तो वो कैसे मेजर करता था कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं? कंपास. कंपास ये डायरेक्शन दिखाया है इसका मतलब ये नॉर्थ है, यदि ये डायरेक्शन दिखाया मतलब ये साउथ है. लेफ्ट में दिखाया तो इट इज गोइंग टू बी वेस्ट और नॉर्थ के राइट में दिखाया तो इट इज गोइंग टू बी ईस्ट. सो दैट्स हाउ दे गोइंग, यू नो, दे यूज्ड टू फाइंड आउट द पार्ट. नाउ देन कम्स द वर्ड मैग्नेटिक फील्ड. अब सर ये मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है?
अंडरस्टैंड, सपोज करो देर इज दिस मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ, राइट ना। ये जो मैग्नेट है ये चारों तरफ में कुछ एरिया के अंदर तक आप इसकी फील्ड को फील कर सकते हो, फील्ड को फील कर सकते हो मतलब। अनदर एग्जांपल देते हैं, लेट्स से सपोज आपके पेरेंट्स, आप अभी घर पे बैठे हो एंड लेट्स से सपोज यू आर प्लेइंग और स्लीपिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक एंड यू नो दैट द पेरेंट्स आर नॉट बैक होम, ओके, दे आर नॉट एट होम नाउ, आप नॉर्मल खेल रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन पेरेंट्स आ गए दोनों एक साथ। अभी इमीडिएटली आपको यदि मालूम पड़ेगा तो नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो क्या करेगा, इमीडिएटली सपोज ये म्यूजिक सिस्टम लगाया है, पेरेंट्स आएंगे, रूम खोलेंगे, क्या कर रहे हो, मम्मी आई एम स्टडिंग। द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड, उन्होंने तो कुछ चिल्लाया भी नहीं आप पर, उन्होंने तो केवल पूछा क्या कर रहे हो। यदि आपने बोला होता कि म्यूजिक सुन रहा हूं या कुछ वीडियो गेम खेल रहा हूं, देन कुछ बात और होती। नाउ दिस इज दैट एरिया जहां तक आप उनकी फील्ड को फील कर सकते हो। इमेजिन करो यही सेम केस आप अपने कोचिंग सेंटर या अपने स्कूल या कहीं पर भी आप आकर के बैठे हुए हो एंड देयर इज अ फ्री पीरियड, मतलब कोई भी नहीं है क्लास में, नॉर्मली कोचिंग सेंटर्स में ऐसे फ्री पीरियड्स नहीं होते हैं, बट लेट्स अज्यूम दैट आप कुछ फ्रीली ऐसे बैठे हुए हो आराम से, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर समबडी टू कम। आपको मालूम है यहां पर आपके पेरेंट्स नहीं है, इस कंडीशन के अंदर विल यू फील रिलैक्स्ड और विल यू फील अ बिट टेंस्ड? यू वुड से यस सर वी फील रिलैक्स्ड। हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हो, अरे तेरे को मालूम है आजकल ऐसे हुआ, अरे तू ऐसे मत कर, अरे तू डफर है, तू ये है, तू वो है, समथिंग 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 इन योर ओन टोन्स। बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स, एज सून एज आपको मालूम पड़ जाए कि पेरेंट्स वहां पर आ गए, किसी फ्रेंड ने बोला चल चल घूमने चलते हैं, सॉरी मैं नहीं जाऊंगा, अरे क्या हो गया, अभी तक तो चल रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। बट वाई इज दिस सडन चेंज इन द नेचर? बिकॉज नाउ आपका जो एरिया था अब उसके अंदर पेरेंट्स भी आ चुके हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैग्नेटिक फील्ड? द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच यू कैन फील द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल बी नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के आजू बाजू वो एरिया दूर दूर तक जहां तक आप उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को फील कर पा रहे हो या आपको लग रहा है कि यहां पर कुछ मैग्नेट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ गाइस ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप कभी कोई क्रेमेटोरियम के आजू बाजू से कभी गए हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं शमशान घाट? भूत, आई नो गाइस भूत नहीं होते एंड ऑल दिस एंड ऑल दैट जैज। गाइस आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, मान लो रात में 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, आप नॉर्मल जगह से जा रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको यदि मालूम पड़ गया कि उस जगह पर डेड बॉडीज को बर्न करते हैं या क्रेमेट करते हैं या उनको बरी करते हैं, किसी भी रिलीजन का हो, यदि आप वहां से जा रहे होगे, आपको एक अलग सी एक फीलिंग आने लगेगी अंदर से, अलग सी, नॉर्मली हाँ। इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक? वहां से तो कोई नहीं निकला, कोई भूत भी नहीं है, बट स्टिल एक अजीब सा डर लगने लगता है। क्यों? दैट इज दैट फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। एज सून एज दैट पर्टिकुलर ग्राउंड इज कंप्लीटेड, आप जैसे घर में आ जाते हो, नाउ यू फील फाइन। बट व्हाई इज दिस पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो जब भी कभी आपने कोई मैग्नेट के चारों तरफ में जो एरिया बन जाता है, एंड दिस वुड बी नोन एज व्हाट? This would be known as the magnetic field, right? So what is the definition of magnetic field? The area encompassing or circling or covering the magnet around which the field can be felt is known as magnetic field. Okay? Now comes strength of magnetic field. कई जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और कई जगह पर कम होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? Let us say suppose there is this north pole and there is this south pole. अभी आप आगे जाकर के पढ़ोगे the properties of magnetic field के अंदर, magnetic field lines, ये field lines real नहीं होती हैं, ये field lines imaginary होती हैं, आप ऐसे मान के चलते हो कि ऐसे होंगी।
तो ये जो फील्ड लाइंस हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड आर गोइंग टू एंड ऑन व्हाट, साउथ। नॉर्थ से चालू होंगी, साउथ पे खत्म होंगी, लाइक दिस। नॉर्थ से चालू होंगे, साउथ पे खत्म होंगे। नाउ दीज फील्ड लाइंस कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। So these are known as what? Magnetic field lines. तो आप कैसे डिफाइन करोगे? What do you mean by the word magnetic field lines? The imaginary field lines which starts or which seems to be starting from North Pole and ending on South Pole will be known as magnetic field lines. अभी guys मुझे एक बात बताओ, किस जगह पे आपको ज्यादा क्राउड दिखाई दे रहा है? सर इस तरफ में मुझे ज्यादा क्राउड दिखाई दे रहा है, मतलब ये कौन सा एरिया हो गया? पोल्स का। और इस तरफ में भी आपको ज्यादा फील्ड्स दिखाई दे रही होंगी, सारी एक साथ भीड़ इकट्ठा हो रही है टाइप की। यहां पर काफी दूर दूर है। जिस जगह पर भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत आजू बाजू में होंगी, बहुत सारे होंगे लाइंस निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, दैट मीन्स ओवर हियर द स्ट्रेंथ वुड बी व्हाट? हाई। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। भाई इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। बट इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? लेस। इस जगह पर लेस। ओके, सो दिस इज नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आते हैं द वर्ड पे, यूनिट्स, सिंबल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग बी से शो करते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? दिस बी शुड बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? phi upon A. Now what is this B? This B is known as magnetic field intensity. कितनी जगह पर कितनी फील्ड ज्यादा है? What do you mean by phi? Phi का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और A का मतलब क्या होता है? एरिया। अब इसका मतलब समझो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब किस जगह पर कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस हैं कितने एरिया के अंदर। सपोज मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, समथिंग लाइक दिस। अलग अलग मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं। पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे हैं। नाउ टेल मी एट विच पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फील्ड स्ट्रेंथ हायर, एट ए और एट बी? कॉमन सेंस एट ए। व्हाई? बिकॉज देयर सीम्स टू बी मोर क्राउडिंग। बिकॉज इस जगह पर ज्यादा फील्ड लाइंस हैं तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। पहले इस जगह पर क्या हो जाएगा? कम। So that means that whenever somebody says, what do you mean by phi? Phi means the number of field lines. But sir, field lines तो होती नहीं है, imaginary. The number of field lines, इसी को हम लोग बोलते हैं magnetic field lines. What is B? Magnetic field strength. A, area. कितने से एरिया में कितनी सारी फील्ड लाइंस हैं, यहाँ कितने से एरिया में कितनी कम फील्ड लाइंस हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स, सिंबल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिट्स का मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, सिंबल बता दिया। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फाई का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए मींस एरिया। अब बात आती है यूनिट्स की। तो यूनिट होता है बी का एंड दैट इज नोन एज टेस्ला, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सर निकोलस टेस्ला। ओके, सो दैट इज टेस्ला, राइट। ऑफ कोर्स आजकल ये कंपनी भी बहुत फेमस है, remember the company Tesla, which makes electric cars in US, like that. So Tesla is the unit of magnetic field intensity. इसी की एक और यूनिट होती है which is known as what? Weber by meter square. Weber
अपॉन मीटर स्क्वायर। फाई अपॉन ए, तो फाई की यूनिट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर। अब सपोज कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इट्स वेबर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? इट्स वेबर पर मीटर स्क्वायर। नहीं नहीं, व्हाट इज द अदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? इट्स टेस्ला। व्हाट कैन बी द अदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? इट कैन बी ऑल्सो नोन एज ऑयस्टर। स्पेलिंग चेक कर लेना, ऑयस्टर। ओके, सो रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी का यूनिट क्या होगा? इट कैन बी टेस्ला, और इट कैन बी वेबर बाय मीटर स्क्वायर, और इट कैन बी ऑयस्टर। ओके सर, फिर ये फाई क्या होता है? फाई मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इमेजिनरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट ऑल कैन बी द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सर अभी तो बताया था मैग्नेट होगा, ऑफ कोर्स यस, मैग्नेट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट एल्स? अ मूविंग चार्ज, यदि कोई प्रोटॉन जा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So that means a moving charge is also a source of magnetic field. Then a change in the electrical field, that can also be the source of magnetic field. तो अभी किसी ने पूछा, so you can say magnetic material, magnetic material. Then किसी ने पूछा नहीं कुछ और, moving charge, देन किसी ने पूछा चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। आप बोलोगे सर मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से भी? हाँ, इनफैक्ट अभी जब ये लेक्चर आप पढ़ोगे तो आप चेक करोगे दैट जितने भी जो हाई टेंशन वायर होते हैं, हाई टेंशन जो वायर्स होंगे, उन सब में ये पार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। बट अभी उस पर नहीं जाते, आज का लेक्चर सिंपल रखते हैं। So these are the sources of magnetic field. Then they are saying magnetic field lines. So I've already told you these are the magnetic field lines. They seems to be emerging from North Pole and will end on where? South Pole. That's it. Okay. Now let's move on to the word properties of magnetic field. What all can be the properties of magnetic field? Of course, I'll tell you today in the group the page number also, so that you can find it around. But I'll just tell you what are the properties of magnetic field. First property of magnetic field is they are continuous. They are continuous. Second property, they will always form closed loops. वो हमेशा क्या फॉर्म करेंगे? Closed loops. Second point. So first point हो गया they are continuous. Second point, they will always form closed loops. Third point, they will always start from North Pole and will end on South Pole. So आप इसको ऐसे लिख सकते हो, outside the magnet, magnetic field lines will always start from North Pole and will seem to end in South Pole. Next, inside the magnet, जब यहाँ से यहाँ आएगा, inside the magnet, the magnetic lines will always travel from South Pole towards the North Pole, क्योंकि इनको continuous curve बनाना होता है. That's the reason why. Okay. So please understand, if somebody asks you, where does the magnetic field lines flow from outside? From North Pole to South Pole. Where does the magnetic field flow from inside? From South Pole to North Pole. Okay. Next point. Magnetic field lines can never ever intersect each other. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देख रहे हो, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी नीड टू ओनली ड्रॉ व्हाट? अ टेंजेंट। सो द पॉइंट गोज लाइक दिस, a tangent drawn on the magnetic field curve will give us the idea of the magnitude of magnetic strength. जिस भी जगह से आप टेंजेंट बनाओगे वहां से उस पॉइंट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी स्ट्रेंथ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
two magnetic field lines can never ever intersect each other. मान लेते हैं कि ये magnetic field lines intersect कर रही हैं. Now if they're intersecting each other, that means what? That simply means that these two magnetic field lines will always try to intersect each other. अब इसका मतलब है, अभी तो आपने बताया था कि कर्व से जब भी टेंजेंट बनाऊंगा तो दो वैल्यू आ जाएंगी, तो इसका मतलब इस जगह के लिए यहां से टेंजेंट बनाऊंगा और इस जगह के लिए यहां से एक टेंजेंट बनाऊंगा. बट गाइस टेंजेंट तो कर्व का एक ही होता है, तो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट कैसे बन सकते हैं? एंड दैट इज द रीजन व्हाई magnetic field lines can never ever intersect each other, because if they intersect each other, that means that at that point there has to be two tangents drawn, and from a single point you cannot draw two tangents on a curve. So that's all the properties. Got it? Last property, the strength of magnetic field will increase if there is crowding of magnetic field lines. The strength of magnetic field will decrease if the field lines will scatter in all the direction or if they will be uniformly spread. तो इसका मतलब है इस जगह का magnetic field strength इस जगह से क्या होगा? ज्यादा. इस जगह का magnetic field strength इस जगह से क्या होगा? कम. Because यहाँ पर ये दूर दूर है, यहाँ पर ये पास पास है. That's simple. सपोज करो कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेट है, मतलब एक मैग्नेट है, प्लेन से बाहर मैग्नेट, और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, सेम टू सेम. देन इन दैट केस द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज शोन विद द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइंस. सो पैरेलल लाइंस विल बी शोइंग यू दैट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है. लेकिन इस कंडीशन में देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यहाँ बहुत ज्यादा, बहुत कम, सबसे कम, फिर ज्यादा, ज्यादा, काफी ज्यादा, हाईएस्ट. So okay, so this will be today from my side for the chapter magnetic effect of electric current. Tomorrow we are going to actually study what do you mean by magnetic effect of electric current, what are the effects and what are the applications based on it. Okay, so it would take around 4 days to 5 days to complete this topic, and before the Independence Day I am sure that ये चैप्टर एंड 2 चैप्टर और बायो के खत्म हो जाएंगे आपके. ओके, थैंक यू गाइस so much for being with me. Enjoy, chill and keep smiling. Bye bye.